सैनिक कैंप इन 2022। तो आज हम हेल्थ एंड हाइजीन की पहली सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम चैप्टर वाइज हेल्थ एंड हाइजीन को कवर करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं, आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं एंड क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड I'd also suggest you कि जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ नोट इट डाउन इन सम नोटबुक. ओके, सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. The human body is the greatest of all complex machineries. In order to carry out first aid, a first aider should have basic idea of structure and functioning of every part of the human body. Many lives can be saved if proper and timely first aid can be rendered. So the first question can be framed from the first line of this chapter itself. The interviewer can ask you that why is there need to study the structure and functioning of human body? So you would answer, sir, in order to carry out first aid, a first aider should have basic idea of structure and functioning of human body. Okay. So in this chapter we are going to study about skeletal system, muscular system, circulatory system, digestive system, nervous system, excretory system. Okay, so one by one we'll see. So the first is skeletal system. Human skeleton is the internal framework of the body. The bones give shape and firmness to the body, as it also protects the vital organs like brain, heart, lungs and spinal cord. So here importance of bones is given कि bones क्यों important है. It gives shape and firmness to the body. So one question can be framed from here, like it is given that bone protects the vital organs like brain, heart, lungs and spinal cord. So which bone protects the brain, which bone protects the heart and lungs, which bone protects the spinal cord? So the answer is brain is protected by skull, heart is protected by rib cage, lungs are also protected by rib cage and spinal cord is protected by vertebral column. ओके, सो आपको हर चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन थोड़ा डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में. ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया ओके इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड. नो, यू शुड नो विच बोन्स प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, विच बोन इज प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, इट इज़ composed of 300 bones at the time of birth. It total decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. So at the time of birth कितनी bones होते हैं? 300 bones and then 206 bones हो जाते हैं by adulthood. अब ये कैसे होती है? It happens by the process of ossification. There is a process called ossification जिससे bones reduce हो जाती हैं और they fuse together basically. Okay, so you should know the process. Please note it down, okay? The bone mass in the skeleton reaches maximum density at the age 20. I still remember कि ये 300 not bones वाला जो 300 bones वाला क्वेश्चन TSA दिल्ली में आया था एज एन MCQ, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हुआ था, बट इट डिपेंड्स, तो आप सब्जेक्टिव के तौर पे भी चीज़ों को प्रिपेयर करिए. The human skeleton can be divided into axial skeleton and appendicular skeleton. Now what is axial skeleton and appendicular skeleton? सपोज दिस इज़ अर्थ, तो इसकी एक्सिस होती है. सिमिलरली ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसकी एक्सिस ये है. ओके, तो इसके एक्सिस में कौन कौन से बोन्स यहाँ पर आ रहे हैं? स्कल, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिब केज. ओके, सो दिस इज आर एक्सियल स्केलेटन. द एक्सियल स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड स्कल. ओके, and other associated bones. The appendicular skeleton which is attached to the axial skeleton is appendicular मतलब जो axis के अराउंड जो भी चीज़ें appended हैं, जैसे कि हमारे hands, pelvic girdle हो गया, legs की bone, ये सब आएंगे हमारे appendicular skeleton में. The appendicular skeleton which is attached to the axial skeleton is formed by shoulder girdle, pelvic girdle and the bones of the upper and lower limb. Okay, so you should remember this. And the human skeleton performs 6 major functions: support, movement, protection, production of blood cells, storage of minerals and endocrine regulation. So ये 6 major functions you'll have to mug up well. Okay,
एंड सपोर्ट करता है बोन्स हमारी बॉडी को, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, जो भी हमने देखा कि वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. देन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. यू शुड नो कौन से ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है. RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. जो ब्लड सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. सो एंड देन स्टोरेज ऑफ मिनरल्स. कौन से मिनरल्स को स्टोर करता है. व्हेन यू आर टेलिंग के ह्यूमन स्केलेटन का एक फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, सो यू शुड नो विच मिनरल्स स्टोर करता है वो. सो द आंसर इज कैल्शियम. ओके, सो दिस डायग्राम हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, आई स्टिल रिमेंबर इन IGC, कि विच इज़ द फिक्स्ड जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी. तो इट इज़ पैरेटोटेम्पोरल. Fixed joint is parieto-temporal. This is really important. Then you should know which is the ball and socket joint, which is hinge joint, where is the humerus bone and radius ulna. These are bones in our upper limbs, that is in our hands. And lower limbs में कौन कौन सी bones होती हैं. Femur, fibula, tibia. Okay. Then okay, this much is enough. Now classification of bones. Bones can be classified to their shape as under long bones, short bones, flat bones, irregular bones and sesamoid bones. ये 5 types of bones है. Skeleton के types अलग थे and classification of bones is a different thing. तो confuse मत हो जाना. अगर आपको types of skeleton पूछा है तो you'll write appendicular and axial. and अगर classification of bones या types of bones पूछा है तो long bones, short bones, flat bones, irregular bones and sesamoid bones. Long bones are long and tubular. Example are upper and lower limbs, जो हमारे hands या legs में होते हैं वो. Short bones are short and tubular, जो हमारे ankles and wrist में होते हैं. Flat bones, they are flat like plates. Example bone of cranium, skull, shoulder or hips. Okay. Then irregular bones, जो irregular या mixed shape के होते हैं. Example vertebral column. Then sesamoid bones, they develop in the tendons of the muscles around the joints. Example patella. So patella कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए. तो ये हमारे knees में होता है and it is the largest sesamoid bone. We should also know this. Okay. Moving next. Muscular system. The muscular system is an organ system consisting of skeletal, smooth and cardiac muscles. It permits movement of the body, maintains posture and circulates blood throughout the body. तो हम इतना पहले पढ़ लेते हैं. तो there are 3 types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. इनको हम आगे थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. It permits the movement of the body. तो हमने जैसे भी बोन्स का फंक्शनिंग पढ़ा कि बोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली मसल्स का क्या इंपॉर्टेंस है. मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मेंटेन्स पोस्चर एंड सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो हमने स्केलेटल सिस्टम में भी देखा था कि मूवमेंट ऑफ बॉडी एक फंक्शन है. मस्कुलर सिस्टम में भी हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ बॉडी एक फंक्शन है. तो इफ सपोज क्वेश्चन कम्स, डैश is responsible for the dash system is responsible for the movement of body, so your answer would be musculoskeletal system. Okay, remember this, क्योंकि muscular system plus skeletal system, that is musculoskeletal system, is responsible for the movement of human body. The muscular system in vertebrate is controlled through nervous system, although some muscles such as cardiac muscles can be completely autonomous. Okay. And the muscles form about half of the total weight of the body and are responsible for body movement. बहुत सिंपल लैंग्वेज और सिंपल इंग्लिश में यहाँ दिया है, उसको इजीली समझ सकते हो. Now in muscular system we'll study about some important muscles like quadriceps, gluteus maximus, rectus abdominis, biceps, triceps, deltoid, trapezius, adductor longus and adductor magnus. Then biceps femoris. These are some of the muscles you should know about. And when we are talking about muscular system, we should also know कि हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं. देखिए ना कितनी मसल्स हैं हमारी बॉडी में. जैसे नंबर ऑफ हमको बोन्स पता है, it's 206 bones by adulthood. So how many muscles?
So it's 580 muscles present in a human body. Which is the smallest muscle? That is stapedius muscle. It is present in our ears. And जो longest मसल कौन सी है? sartorius मसल है, जो हमारी हिप जॉइंट से या हिप बोन से नी तक की जो जॉइन होती है वो जो मसल है, दैट इज द लॉन्गेस्ट मसल. शॉर्टेस्ट कौन सी है? स्टेपेडियस मसल. एंड लॉन्गेस्ट है sartorius. वैसे ही शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है भी पता होना चाहिए. लॉन्गेस्ट इज फीमर एंड शॉर्टेस्ट इज स्टेप्स प्रेजेंट इन आवर ईयर्स. The classification of muscles. There are 3 types of muscles: voluntary skeletal muscles, involuntary muscles, and cardiac muscles. These muscles are attached to the surface of bones and form about 47% of the body weight. Most of the skeletal muscles span from one bone to another across a joint, and by contracting, they act upon the joints and produce movements. तो वॉलेंट्री का मतलब है कि हमारी जो मसल्स है कंट्रोल में होती है, एंड इनवॉलेंट्री मसल्स का वो मतलब होता है कि जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. एग्जाम्पल, हमारी जो स्किन या हमारी जो बोन्स के ऊपर जो भी मसल्स है, कुछ भी हमें गर्म लगता है हम फटाक से हमारा हाथ हटा लेते हैं, कुछ कट गया तो हम हटा लेते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ इन आवर कंट्रोल. इट इज़ वॉलेंट्री एक्शन. ठीक है. स्केलेटल मसल्स मतलब जो हमारे कंट्रोल में है. इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. एग्जाम्पल, हमारे स्टमक की जो मसल्स हैं या हमारे इंटेस्टाइन में जो मसल्स हैं, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस. दे डू नॉट आस्क बिफोर वर्किंग एनीथिंग. ओके, सो दैट इज इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स. जो हमारे हार्ट में जो भी मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं. दे आर स्ट्राइटेड स्ट्रक्चरली, अनस्ट्रेन्ड फंक्शनली. दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल. नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. अब यहाँ पे आपको देखोगे तो इस नोट्स में सिर्फ हार्ट के बारे में आपको 1 पैराग्राफ में दिया है. यहाँ पे ब्लड के बारे में भी 1 लाइन में दिया है, ब्लड वेसल्स के बारे में भी बहुत कम दिया है, बट आपको इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी पड़ेगी अपने नोट्स में. सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्लड का काम क्या बताया, फंक्शन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टिश्यूज़ तक जा सके, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है टिश्यूज़ में, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो रिमूव हो सके. तो हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन. कौन कौन से 4 चैम्बर्ड होते हैं? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. सबसे पहले हमारी अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, एंड इन्फेरियर वेना कैवा के थ्रू जो लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में. देन राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट गोज टू आवर लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. टू लंग्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आता है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, दैट इज प्योर ब्लड, एंड देन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन थ्रू एओर्टा पूरे बॉडी में हमारा प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है. तो ये इन शॉर्ट मैंने थोड़ा बताया. आपको डिटेल में अगर और देखना है तो आप देख सकते हो, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आपको इतना थोड़ा डिटेल में हर एक टॉपिक को. देन इट इज सिचुएटेड इन थोरैक्स बिटवीन द लंग्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. टू अ साइज कितना होता है? क्लोज्ड फिस्ट जितना, लेफ्ट हैंड के फिस्ट जितना बोला जाता है. एंड मेल में जो उनका वेट होता है हार्ट का वो 300 ग्राम्स, एंड इन फीमेल 250 ग्राम्स. ये भी MCQ या फिलअप्स के लिए पूछते हैं वेट. Now, blood is also known as the transport system of the body. It consists of plasma, RBCs, WBCs and platelets. तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि RBC का परसेंटेज कितना होता है, WBC का कितना होता है, प्लेटलेट्स का परसेंटेज कितना होता है हमारे ब्लड में. मेरे नोट्स में लिखा है वो, और आप वहाँ से देख सकते हो ये सब चीज़ें इन डिटेल, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. Blood vessels are tube-like structures which carry blood all over the body for circulation. These are of 3 types: arteries, capillaries and veins. Okay. Now what are arteries? Arteries are blood vessels which carry pure blood from heart to other parts of the body. यहाँ पे प्योर ब्लड मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन मेंशन कि आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है हार्ट से थ्रू आउट बॉडी, and the only artery which carries impure blood is pulmonary artery.
पल्मोनरी आर्टरी किसको कनेक्ट करती है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, एंड इट्स द ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड. देन कैपिलरीज जो होती है वो स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स होती है जो exchange of oxygen and nutrition with carbon dioxide takes place in capillaries. Then is our veins. Veins जो होती है they carry impure blood to the heart, but the only vein which carries pure blood is pulmonary veins. Okay, pulmonary vein is the only vein which carries pure blood. Otherwise all the veins carry impure blood, and the main veins are superior and inferior vena cava. क्वेश्चन आ सकते हैं डैश एंड डैश आर द मेन वेन्स, या इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा आपको पता होना चाहिए. सुपीरियर अपर बॉडी से ब्लड लाती है इम्प्योर ब्लड, एंड इन्फीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाती है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. ये डेफिनेशन हमने रेस्पिरेशन की 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं. The human respiratory system consists of pair of lungs and series of air passages leading to the lungs. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है. नोज, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलीज. एल्वेलीज क्या होता है? यहाँ पे दिया है, इसमें देखो, यहाँ पे ये एक बलून लाइक एयर सैक बैग्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. As air enters through the nose, when air passes through the nose, it is warmed, moistened and filtered. Warm कैसे होता है? Through blood. And moistened कैसे होता है? Through mucus. And filtered through hairs. And एक चीज़ यहाँ बतानी है, pharynx जो है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी दिया है, एंड आप डाइजेस्टिव जब पढ़ोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी pharynx दिया है. तो pharynx के थ्रू एयर भी पास हो रही है एंड फूड भी पास हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का एक टिश्यू होता है. डाइजेशन इज अ केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस so that they can be easily absorbed by blood and utilized by various tissues of the body according to the requirements. So you should know कि complex food substances कैसे हैं and वो कैसे कौन से simpler forms में break down होता है उनका. जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है, बट आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या कौन से सिक्रीट करते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, देन फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस. तो व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट ईसोफेगस यू शुड नो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ईसोफेगस. इट इज़ 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से हमारा फूड जाता है, फिर स्पिंस्ट्रल मसल्स के थ्रू स्टमक में एंटर होता है. फिर कौन कौन से जूसेस वगैरह वहाँ पर आते हैं. प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ चीज़ें कन्वर्ट होती हैं एंड ऑल. वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे. पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूसेस, स्टमक का साइज, उसका वेट, देन पैंक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स excess unnecessary materials from the body fluids of an organism so as to help maintain internal chemical homeostasis and prevent damage to the body. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते रहते हैं. ओके, उनको रिमूव करना नेसेसरी है, अदरवाइज वो हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचाएंगे. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे स्किन आती है, लंग्स आते हैं, किडनी आती है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आता है. जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये सारी चीज़ें आएंगी, बट जब हम सिर्फ यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तब आप वहाँ पे किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा को मेंशन करोगे. स्किन के थ्रू स्वेट निकलता है, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होता है, किडनीज के थ्रू यूरिन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू फीसेस. ओके, the dual function of excretory system is the elimination of waste products of metabolism and to drain the body of used up and broken down components in liquid and gaseous state. तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा है कि what are the dual functions of excretory system. So it is the elimination of waste products of metabolism
and to drain the body of used up and broken down components in liquid and gaseous states. ओके, पर्सपिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्किन से स्वेटिंग होती है. एंड ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है कि ये रहा इंफीरियर वेना केवा. ओके, ये पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स, ये सब हमारी किडनी के अंदर होता है. एंड व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी? इट इज़ नेफ्रॉन. यू शुड नो दैट. ओके, देन एड्रिनल ग्लैंड, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? Last is nervous system. Internal balance of the human body is maintained within normal limits by nervous system and endocrine system. The neurons are the basic units of nervous system. The nervous system may be divided into three main parts: central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. Alright. Peripheral nervous system is a connection between central nervous system and other various organs and muscles. तो हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू आप देख सकते हैं ये बहुत सारे ये जो दिख रहे हैं येलो कलर की पतली पतली लाइंस. ओके, दीज आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड जो ये हमारा ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एन ऑफशूट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैंक्रियाज, लंग्स, लीवर, ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं. वी कैन नॉट कंट्रोल देयर फंक्शन, सो दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट. हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. नाउ विल कम टू द कंक्लूजन पार्ट. द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम which includes the circulatory, respiratory, digestive, excretory and nervous systems. They also include the immune, skeletal and muscular systems. These systems work together to maintain a functioning human body. Therefore, basic knowledge of our body system allows us to understand the field of health and hygiene with ease. This knowledge provides us the basic framework on which subsequent knowledge and skills dealing with medical science can be gained in a progressive manner. कंक्लूजन में ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हर चीज़ में पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इसमें दिया है थोड़ा बहुत पढ़ लिया. अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ऐसे ईसोफेगस, तो उसकी लेंथ, उसका डायमीटर, स्टमक, गॉल ब्लैडर के बारे में पता होना चाहिए, लीवर के बारे में पता होना चाहिए, पैंक्रियाज के बारे में कौन कौन से पैंक्रियाटिक जूसेस है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, उसका डायमीटर क्या होता है, रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, अपेंडिक्स क्या होता है, एवरीथिंग इन डिटेल यू शुड नो.